Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will continue with the grammar, and in grammar we are studying parts of speech, and in parts of speech our today's topic is clause. And clause is very important. Clauses are very important. These clauses are used in our writing to clear our meanings in order to make our writing beautiful, and we use different type of functions of clauses, different type of kinds of clauses in our sentences to clear our thought in our sentences. These clauses make our writing charming, make our conversation beautiful. These helps us these clauses help us to make others understand our point of view very easily. So students, we will continue with the parts of speech with the clause. And students, I am your teacher, English teacher Abrar Hussain, and teaching you today clause. So students, before moving towards the topic, I have set some objectives. These objectives are understand, explain the clauses that I the के आप understand कर सकेंगे और clauses को explain कर सकेंगे, differentiate among its types, differentiate और इसकी जो different types हैं उनको आप उनमें फ़र्क कर सकेंगे, use different type of clauses in the writing. आप इस काबिल हो सकेंगे कि अपनी राइटिंग में क्लॉजेस को इस्तेमाल कर सकें, यूज़ एंड इलस्ट्रेट द पर्पस ऑफ क्लॉजेस। आप इनके क्लॉजेस के मकसद को समझ सकेंगे जो हम अपनी राइटिंग में या अपनी कन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं। यूज़ एंड इलस्ट्रेट द पर्पस ऑफ क्लॉजेस इन आवर डेली कन्वर्सेशन एंड राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, after that we will move towards index, and today I will teach you definition. I will tell you the definition with examples and types of uh, clauses. And along with this, we will continue with kinds of dependent clauses. And in dependent clauses we will study today just noun clause. I will end the topic here because it will be very long if I continue with the three kinds. Students, move towards the topic. First of all, the question is, what is a clause? Students, clause are just like a simple sentences. The sentences that we speak in our daily conversation, the sentences that we write in our daily writing. तो ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपनी डेली की ज़ुबान में लिखते हैं या बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सिर्फ होता है सब्जेक्ट और वर्ब होता है। दैट कन्वेज कंप्लीट सेंस, जो हमें मुकम्मल समझ बूझ देता है, और थॉट और मीनिंग, जो हमें जुमले को मुकम्मल तौर पर समझा देता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ सिंपल सेंटेंस। ये एक आम सिंपल सेंटेंस की तरह के होते हैं। मसलन ही इज़ अ बॉय, दे आर, he is a boy, they are girl, they are playing in the field, students are swimming in the canal. So these sentences are very simple sentences that we use in write in our daily conversation, in our daily writing. So students, if we see it in the examples, you will be able to understand. I have written the verb and subject in different colors. Students, first example is she feels hunger at 12 o'clock. को 12 बजे उसे भूख लगती है। she subject feels, इसमें verb है। Ali has learnt a lesson, Ali subject है, learnt इसमें verb है। They were playing in the ground, they were playing, they subject है, playing verb है। He has a ball, he इसमें subject है, has इसमें verb है। She had done her work, वो अपना काम कर चुकी ही थी। she subject है, done इसमें verb है। we are friends, we इसमें subject है और इसमें friends है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंसेस हैं, सिंपल इसमें वर्ड्स हैं, जो इसको एक हिस्से को हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट
या सब्जेक्ट वर्ब में लिखा है, इसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कहते हैं। प्रेडिकेट कहाँ से, यहाँ से लेके अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके समझाऊं तो ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये तो हो गया ना सब्जेक्ट, ये वाला हिस्सा सब्जेक्ट है। लेकिन ये वाला हिस्सा, इसको हम सारे के सारे को हम प्रेडिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। इसी तरह ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तो ये प्रेडिकेट है। तो एक कंप्लीट क्लॉज कैसे बनता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जॉइंस टुगेदर एंड मेक अ क्लॉज, मेक अ सेंटेंस और क्लॉज। तो ये सारे के सारे जो सिंपल मैंने आपके सामने सेंटेंसेस रखे, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ clauses. So students, moving towards next our topic, टाइप्स ऑफ क्लासेस। अब नेक्स्ट आगे क्या है कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। सेंटेंसेस तो हमारे सामने डिफरेंट होते हैं, हम डिफरेंट किस्म, नेगेटिव, इंटारगेटिव और मुख्तलिफ किस्म के भी सेंटेंसेस बोलते हैं। एक सेंटेंस के भी डिफरेंट हिस्से होते हैं, इसमें कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं, इस तरह की होती हैं। लेकिन एक सिंपल सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं या कंपाउंड सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, इनकी दो किस्में हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखी है। इंडिपेंडेंट क्लॉज आल्सो कॉल्ड अ मेन क्लॉज, इसको हम सेंटेंस का जो मेन हिस्सा होता है जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट और वर्ब होता है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं। मेन क्लॉज इज अ ग्रुप, इज अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, यानी ये मुकम्मल तौर पे फ्री ऑफ, ये फ्री, अकेला ये बहुत खड़ा होता है और अपने मीनिंग को क्लियर कर सकता है और इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन टू बी अ कंप्लीट सेंटेंस, एक मुकम्मल जुमला होने के लिए इसमें तमाम किस्म की मालूमात दर्ज होती हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में मुकम्मल एक सब्जेक्ट होता है, दैट टेल्स यू व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जिससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस किसके मतलब है। एंड अ वर्ब, और इसमें एक वर्ब होता है, दैट टेल्स यू व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी सब्जेक्ट का एक्शन क्या है। मसलन ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इसमें सब्जेक्ट है, अब उसका एक्शन क्या है, प्लेइंग फुटबॉल, वो इसमें प्लेइंग वर्ब है। इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इसमें मुकम्मल इसके मीनिंग क्लियर होते हैं। रिलाइंग, इसमें रिलाइंग दैट समथिंग हैज़ हैपन्ड और वाज सेड, रिलाइंग यानी रिलेटेड होता है या इसमें रिलाई कर रहा होता है कि ये इसके क्या पहले हो चुका या क्या कहा गया। इसमें कंप्लीट एक सेंटेंस की इंफॉर्मेशन, जो कुछ बताने के मतलब हो, कुछ कहने के मतलब हो, कुछ करने के मतलब हो, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद होती हैं। तो इसकी अगर आप एग्जांपल्स की तरफ जाएं स्टूडेंट्स, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एग्जांपल्स भी जो मैंने क्लॉज की एग्जांपल्स दी उन्हीं की तरह के हैं। सिंपल देखें, माई कैट लाइक्स टू ईट मीट, माई कैट लाइक्स टू ईट मीट, यहाँ तक कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें कंप्लीट है और इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है कि मेरी बिल्ली गोश्त खाना पसंद करती है। शी प्लेज वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खेलती है। दे आर नाइस बॉयज़, वो अच्छे लड़के हैं। ही स्पीक्स लाउडली, वो ऊंची आवाज़ में बात करता है। और इन तमाम सेंटेंसेस को देखें, मीनिंग इनके क्लियर हैं, सब्जेक्ट इसमें है, इनमें प्रेडिकेट मौजूद है या वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद है। तो ये तमाम ऑल दी सेंटेंसेस कन्वेज कंप्लीट थॉट, ये हमें मुकम्मल तौर पे एक मुकम्मल सोच या एक मुकम्मल इसका जो मफहूम है वो समझा रहे हैं। एंड हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब और प्रेडिकेट, और इसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट इनमें मौजूद है, यानी एक कंप्लीट सेंटेंस की जो जितने लवाजमात होते हैं, जो जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ये एग्जांपल्स पूरी कर रही हैं। तो ये दीज एग्जांपल्स, दीज सेंटेंसेस शोज दीज आर मेन क्लॉजेज और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, इनको क्लियर मानी क्लियर करने के लिए इनको किसी किस्म की साथ ज़रूरत नहीं है। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का फ़र्क मज़ीद आगे आप समझ सकेंगे जब हम डिपेंडेंट क्लास को देखेंगे। स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट क्लास आप देखें, और डिपेंडेंट क्लॉज आल्सो कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हम इसको बोलते हैं। ये इज़ अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, यानी अकेले ये अपने मीनिंग क्लियर नहीं कर सकता, because it does not contain all the information necessary to be complete sentence,
नहीं, में एक मुकम्मल जुमला होने के लिए इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, वो इसमें मौजूद नहीं होती। अ क्लॉज इज डिपेंडेंट बिकॉज वर्ड्स सच एज बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, इन ऑर्डर टू, ऑल्दो, एंड दो और यूज्ड विद दीज, इनके साथ हम बोलते हैं। कि डिफरेंट किस्म के मैंने कंजक्शन या ट्रांजिशनल डिवाइसेस मैंने आपको जो बताई थी, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इनको बना देते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस, क्योंकि इनका मेन सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ ही मीनिंग है, इनके साथ लगाएंगे तो फिर ये क्लियर हो सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स आप देखें तो मज़ीद आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का फ़र्क नज़र आ जाएगा। अब ये देखें, इसकी एग्जांपल्स देखें कि ब्रदर विल पिकअप, ब्रदर विल पिकअप, ये मेन क्लॉज है, मेन सेंटेंस है, ये हमें भाई हमें उठा लेगा। व्हेन द गेम इज ओवर, अगर आप स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को सिंपल को बोलें व्हेन द गेम इज ओवर, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। इट इज अ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट किसके है? मेन के, मेन क्लॉज के। ब्रदर विल पिक अप, भाई हमें उठा लेगा, ब्रदर विल पिक यू अप, भाई तुम्हें उठा लेगा, व्हेन द गेम इज ओवर, जब गेम खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है बी है, स्टूडेंट्स वी हैव टू चेक द मैप, हमें मैप को देखना पड़ता है बिफोर वी लीव फॉर अ रोड ट्रिप, जब हम कभी रोड ट्रिप के लिए जाते हैं। तो बिफोर या व्हेन, इसमें इनको इन्होंने डिपेंडेंट बना दिया। अगर हम सिंपल सेंटेंस इसी तरह बोलें बिफोर वी लीव फॉर अ रोड ट्रिप, तो इसका मतलब क्या बनता है? रोड ट्रिप पर जाने से पहले। इतनी सी बात अगर हम उर्दू में भी करें तो इसका हम करते रहें बिफोर वी रोड ट्रिप पर जाने से पहले, या गेम ख़त्म होने से पहले, गेम ख़त्म, जब हम गेम ख़त्म करें, तो इसकी इतनी सेंटेंस बोलते रहें तो इनका मानी को क्लियर नहीं होता जब तक हम इनके साथ कोई और मेन क्लॉज हम इनके साथ ऐड नहीं करते। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे सी सेंटेंस देखें, अली विल जॉइन यू, अली आपको ज्वाइन कर लेगा। आफ्टर ही कम्प्लीट्स हिज वर्क, जब वो अपना काम ख़त्म कर लेता है। तो अब स्टूडेंट्स ये तो नज़र आ रहा होगा कि रेड में मैंने डिपेंडेंट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस लिखे हुए हैं, और ब्लैक में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ही विल सी यू इफ़ ही अराइव्स इन टाइम, वो आपसे मिलेगा अगर वो वक्त पर आता है। तो आई नो दैट ही कैन नॉट डू इट, मैं जानता हूँ दैट ही कैन नॉट डू इट, कि अगर वो कि वो नहीं कर सकता है। स्टूडेंट्स अगेन मैं यही बताऊंगा कि अगर हम ये कहते रहें कि वो नहीं, अगर वो नहीं, कि वो नहीं कर सकता है, कि वो नहीं कर सकता है, कि वो नहीं कर सकता है, तो इसका कोई मतलब समझ में आता है? कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि वो नहीं कर सकता है, इसका फिर मुकम्मल तौर पे मतलब समझ में आता है। ही डिड नॉट टेल मी वेयर ही वाज गोइंग, उसने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा था। अब इन स्टूडेंट्स इन दोनों सेंटेंसेस को, पहले मैंने आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस सिंपल बताए, फिर मैंने आपको डिपेंडेंट सेंटेंसेस की एग्जांपल्स दी, और आप फिर दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जब आप देखते हैं तो इनको आपको पता चल रहा है इसमें कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंसेस कौन से हैं। ही डिड नॉट टेल मी, उसने मुझे नहीं बताया, वेयर ही वाज गोइंग, कि वो कहाँ जा रहा था। ही डिड नॉट टेल मी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर हम सिंपल इसको अगर हम कंप्लीट ये समझें कि ये कंप्लीट है, तो ये नहीं है। वेयर ही वाज गोइंग, वो कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम अपनी इसकी काइंड्स की तरफ अगर हम इसको जाते हैं, तो जाने से पहले आपके सामने एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपने ये देखना है कि डिपेंडेंट क्लास सेंटेंसेस कौन से हैं और इंडिपेंडेंट कौन से हैं। इसमें मैंने जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आपने सिर्फ अंडरलाइन को गैस करना है कि ये डिपेंडेंट है या ये इंडिपेंडेंट है, और ये आगे जो खाली जगह छोड़ी हुई है इस पर आपने सिर्फ ये लिखना है कि ये सेंटेंस जो अंडरलाइन है ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको एक अलहदा से सेपरेट शीट मिल जाएगी, उस पर आप ये लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे काइंड्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस, अब आगे देखें इसके जो मेन क्लास है स्टूडेंट्स, उसकी कोई काइंड नहीं होती, उसकी कोई किस्म नहीं होती। इंडिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसकी काइंड कोई नहीं होती। लेकिन उसके जो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इनमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस में जो होते हैं, ये हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कभी हम वर्ब के मतलब किसी या जब कभी हमने वर्ब को एक्सप्लेन करना होता है या नाउन को एक्सप्लेन करना होता है, या नाउन के मतलब को कोई सेंटेंस में नाउन को ही आगे फिर मजीद उसका या सब्जेक्ट के मतलब कुछ बताना होता है,
तो डिफरेंट फिर हम इसकी टाइप्स के हिसाब से इसके नाम रखे हुए हैं और इसको हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको यूज़ करते हैं। तो इसकी 3 काइंड्स हैं। सबसे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस, 3 काइंड्स हैं। सबसे पहले आती है इसकी नाउन क्लॉज, फिर है एडजेक्टिव क्लॉज और फिर है एडवर्ब क्लॉज। All these three clauses are very much important। तो आगे हम टॉपिक अगर देखें तो नाउन क्लॉज, अ नाउन क्लॉज इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज की एक किस्म है दैट एक्ट्स एज अ नाउन। यानी ये नाउन क्लॉसेज जो हैं दरअसल ये क्लॉसेज तो डिपेंडेंट क्लॉसेज तो होते हैं, लेकिन ये इसमें जो क्लॉज का हिस्सा यूज़ किया जा रहा होता है, कभी वो एज अ एडवर्ब यूज होता है, कभी एज अ एडजेक्टिव यूज होता है और कभी एज अ नाउन यूज होता है। इनके फंक्शंस के लिहाज से हम इनको नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पहले हम नाउन क्लॉज देख रहे हैं। नाउन क्लॉज इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन दिस सेंटेंस। जो सेंटेंस में एक फंक्शन उसका जो है या जो एक्शन है वो नाउन की तरह का होता है। अ नाउन क्लॉज ऑलवेज कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें भी वर्ब और सब्जेक्ट होता है। However, it cannot stand alone। यानी ये मीनिंग इसके क्लियर नहीं हो पाते जब तक इसको मेन क्लॉज के साथ जोड़ करना पड़ा जाए। एज अ कंप्लीट सेंटेंस इसको मेन, जब तक मेन क्लॉज के साथ नहीं लगाते ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। इट क्लियर इट्स मीनिंग व्हेन इट इज यूज्ड विद द मेन क्लॉज। या इसके माने भी उसी वक्त क्लियर होते हैं जब ये मेन क्लॉज के साथ इसको हम लगाते हैं। इसकी एग्जांपल्स की तरफ अगर हम देखें स्टूडेंट्स, आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे। आई रिमेंबर मुझे याद है, व्हाट यू सेड यस्टरडे ये इसमें ये इसको सब यू इसमें सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो ये इसको हम एज अ नाउन ये इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो ये इसमें नाउन क्लॉज है। द रियल चैलेंज इज हाउ वी आर, द रियल चैलेंज इज हाउ वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई आवर क्लाइंट, कि अपने क्लाइंट को हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, ये हमारा रियल चैलेंज है। तो स्टूडेंट्स इसमें हाउ वी आर गोइंग, इसमें वी इसमें सब्जेक्ट है, तो ये मज़ीद चैलेंज, रियल चैलेंज इसको मज़ीद ये नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे एक्शन इसका नाउन का है, फंक्शन इसका नाउन का है, तो ये नाउन क्लॉज है। Whoever cleaned the house deserves a thank you। Whoever cleaned the house, whoever स्टूडेंट्स इसमें नाउन क्लॉज है, ये एज अ सब्जेक्ट इसमें यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। डिजर्व्स अ थैंक यू, डिजर्व्स, whoever cleaned the house deserves a thank you। whoever इसमें नाउन क्लॉज है, ये इसको भूल गया रेड करने वाला। My dog will eat, a complete sentence, my dog will eat whatever food I gave him, whatever food I gave him, जो भी खुराक उसको मैं खिलाता हूँ वो उसको खा लेगा। ये इसका फंक्शन एज अ नाउन, माई डॉग विल ईट वट एवर आई गेव हिम। ये वट एवर फूड आई गेव, फूड इसमें सब्जेक्ट है, तो आई वट एवर फूड आई गेव हिम, आई सब्जेक्ट है, इसमें यही सा सब्जेक्ट का नाउन का काम कर रहा है, तो ये नाउन क्लॉज है। आई डोंट नो व्हाट ही डज, मैं नहीं जानता, व्हाट ही डज इसमें कि उसने जो मेन एक्शन कि उसने क्या किया, सी सब्जेक्ट है, तो नाउन का काम कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नाउन। तो स्टूडेंट्स ये नाउन क्लॉज था, इसको मज़ीद हम कल देखेंगे। नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के साथ मिला के आप मज़ीद इसको फिर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये सिंपल सेंटेंसेस जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसके अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स इसकी नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज है, ये भी आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से मेन क्लॉज कौन सा है और नॉन क्लॉज कौन सा है। ये आपने नाउन क्लॉज को आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है। इसको मैंने अंडरलाइन किया नहीं किया हुआ, इन सब सेंटेंसेस को आपने करना है। ये आपको अलहदा से सेपरेट शीट मिल जाएगी और आप अटेंडेंस के तौर पे ये मुझे दोनों शीट्स जो हैं ये मुझे भेजेंगे। तो स्टूडेंट्स
I will continue tomorrow with this topic clauses and its kinds. So students, it was just today's lesson. Thank you very much. I will see you tomorrow with another lesson.